Swapanda Pranam, Uh, well, welcome to Kala Sangvad of Chinmoy Vishwa Vidyapit. With your Ashirwad, we want to start some question and answer and get ourselves enriched by your thoughts and your experience. So, Swapanda, um, my first question to you is that um, I personally know that you have learned from Pandit Santosh Krishna Vishwas uh, of Lucknow Gharana. And since I'm from Calcutta, I knew that Afaq Hussain Khan Sahib used to come, and before that, Abid Hussain Khan Sahib used to also come to Kolkata. So there was an influence of Lucknow Gharana. And then your Guruji, Santosh Krishna Vishwas ji, learned from them. And there was another doyen of tabla player whose name was Hirendra Kumar Gangopadhyay, who was also a good friend of your Guruji. And so, they really created a big name of um, Lucknow Gharana in Kolkata. So, can you talk about a little bit about your Guruji and how he used to teach you, and what was the specialty of his teaching in Lucknow Gharana? yeah, sure. My Guruji's name was, I call him Acharya Santosh Krishna Vishwas because I don't feel like calling him Pandit Santosh Krishna Vishwas. People call me Pandit. So how can I call myself Pandit if he is Pandit? You know. So he's my guru, and just to let you guys know that my guru started playing tabla not very early age. He started Acha. when he was 17 years old. And first he because he was living to North Kolkata. तो नॉर्थ कोलकाता एकदम डिफरेंट है जे साउथ कोलकाता तो वहाँ ही वो ठहरे हुए थे और उनका पिताजी जो थे उनका नाम था विजय कृष्ण विश्वास तो उन्होंने मेरा गुरु को भेजा उनका बहुत दोस्त था मनमोहननाथ गांगुली who was my dada guru's father. And Manmothanath Ganguly, at that time, he was the registrar of Calcutta High Court, those during British period. And and he studied tabla with Lucknow Gharana with Ustad Babu Khan Sahib. Babu Khan Sahib was uh, very close related to Khalifa Abid Hussain Khan Sahib of Lucknow Gharana. Lucknow Gharana. That's how it started. And finally, Manmatha Babu was teaching my guru all along. And then when Hiru Babu started studying with Khalifaji Hmm. at the age of 10, when Hiru Babu was 10, at that time he started with Khalifaji, Abid Hussain Khan Sahib. But my guru was allowed to watch those lessons what Abid Hussain Khan Sahib was teaching to my Dada Guru, means Hiru Babu. And of course, Hiru Babu didn't like it in the beginning, but it was, ये तो उनका पिताजी ने कहा था कि वो ठीक है वो बैठ के सुनेंगे वो तो नहीं बजा रहा है वो सिर्फ सुन रहे हैं लेकिन मेरा जो गुरु थे उनका ये एक पावर था कि वो एक बार वो देख लेंगे कि सुन लेंगे वो अंदर में उनका अंदर में वो सब घुस जाते थे so he was absorbing all this technique all this and Abhideshan Khan Sahib used to teach Hiru Babu 4 hours and every day
because Abid Hussain Khan Sahib used to stay in Kolkata 6 months and 6 months Hmm. in Lucknow. And Acha. that's how Hiru Babu, started. And Hmm. my guru also Hmm. was, watching that and then studying with it. But finally, when Manmatha Babu died, then Hiru Babu, what happened? Sorry, I don't see. 1 minute, bhai. Something went wrong with my computer. Uh, can you hear me? We, yes, we can all see you and hear you. But I cannot see you guys. Okay, I got it. So then my teacher then tied Ganda with Hirubabu. Though Oh, my so teacher, oh, my this is teacher, something new to me. yeah, because he tied Ganda with Hirubabu because Hirubabu's father died. Because he tied Ganda with Hirubabu's father first, and then with Hirubabu, because he was going at that time to Allahabad. There used to be a big competition and conference used to happen in Allahabad during that time. Hmm. This was Hmm. in late 30s or 40s, and that's why Hirubabu, because he was a competitor, my guru. So Hmm. that's why Hirubabu, tied Ganda to him, and he went over there because those are the norm during that time. Ah, And but he was about 7 to 8 years older than Hirubabu, uh, and that's how it started. And my teacher, he was um, he was not a professional tabla player. He was working in Reserve Bank of India. He was one of the uh, director over there. He was very high position. I had been there a couple of times and saw his office room. And so does my Dada Guru too. He was also not a professional. All along, and during that time, the only Bengali tabla player who used to accompany with all the top-notch musician who used to visit Kolkata for conferences, it was they always used to ask my Dada Guru's name, Hiru Babu's name. hmm. So, and that's how it started. And then I got to know my teacher. I think it was some kind of वो हम लोग जो हिंदी में कहते हैं ना बंगाली में कहते हैं जोगाजोग Ah. ये जो कनेक्शन कैसे हुआ कि वो तो नॉर्थ इंडियन नॉर्थ कलकत्ता में थे And you are in South Calcutta. हाँ हम लोग तो साउथ कलकत्ता तो at that time I didn't know him there he had no idea about me actually I was not born at that time so but he decided to come to he sold his that palatial building he sold it and he moved to South Calcutta he bought a house over there but interesting is that during that time there used to be all little clubs, Hmm. where people after their office work they used to go and to the club. It's a theater club, key drama club, key writers club, music club. So they used to go there and just to have, singing or writing, talking about all this stuff. That's what they used to do. And so there was one club which was actually close to our house in Kolkata. So my guru used to go there. And my father, he was not a musician, of course. He was a medical doctor, but he had tremendous love for music. And so he also used to go there uh,
just to watch all these things. And that's how my teacher and my father got together and became one of the best friend. Um, and this was even my father got married. And then when my father got married, and then he used to come to, because my mom was a very good singer during that time. She was very well known uh, singer. So my teacher used to come and play with my mom, and then I was born. So he used to play, and I was just on his lap. And those days there was no diaper. या अभी तो हम लोग ये वेस्टर्न वर्ल्ड पर सब लोग डाइपर यूज करते हैं ना, उसी टाइम पे तो डाइपर वाइपर कुछ नहीं था। तो मैं तो ऐसा ही सुसु कर देते थे, तो वो बेचारा उसको क्लीन करके वो ठीक है, अरे वो बच्चा है, वो क्या है, ठीक है ठीक है। तो मैं मेरा जो चाइल्डहुड था, जो मैं बड़ा हुआ उनका गोद में मैं बड़ा हुआ। तो एंड इन दैट वे आई एम बहुत लकी कि ऐसा एक गुरु मिला कि मैं दूसरा किसी के पास जाने नहीं पड़ा, क्योंकि ये जो आदमी था, he was very ओपन माइंडेड, और उनका इतना जानकारी था, और वो हमेशा एनालाइज करते थे कि इसको और आगे कैसे बढ़ाएंगे, और इसका डिफरेंट एंगल क्या है, इसका टेक्निक कैसे होगा, इसका ये कॉम्पोजिशन है, उसमें इसको भाव कैसा होगा, हाउ कैन यू ब्रिंग दैट सेंटिमेंट टू दैट। तो ये सब मैं जब मेरा 5 साल, तब मैं उनके पास गंडा बांध के शुरू किया। और So you started with Ganda Bandhan right from the very beginning. That's right. मेरा गंडा बंधन तबला का, and also during that time, we used to call that, how do you read and write, right? So you have to, during सरस्वती हाथे खड़ी, जो हम लोग बंगाल में कहते हैं हाथे खड़ी, तो वो एक ही दिन पे हुआ था। इस तरफ मेरा गुरु और दूसरा तरफ हम लोगों का जो हाउस प्रीस्ट, वो तो ऐसा हुआ था। और उसके बाद मेरा तो ऐसा कभी नहीं आया कि मैं दूसरों किसी को पास जाएंगे। इसके कारण भी है, कारण ये है कि मैं जो सोचा था पहले, मैंने ऐसा नहीं सोचा कि तबला मेरा करियर होगा। मैं जो सोचा था कि मैं वो जो एजुकेशन लाइन में जाएंगे, क्योंकि मेरा जो मास्टर्स डिग्री मैंने किया इकोनॉमिक्स में, मैंने सोचा कि उसी लाइन पे मैं जाऊंगा। मैंने कभी सोचा नहीं कि तबला मेरा प्रोफेशन होगा, लेकिन वो हो गया। You are a master's from Jadavpur University in economics, right? If I'm not mistaken. Yeah. तो उसके बाद वो हम रोज आते थे। मेरा तालीम एक्चुअली फर्स्ट 19 years it was 7 days a week. And for how long? I mean, whenever he used to come, suppose you were going to school. Yes, so मेरा routine जो था, because मेरा जो पिताजी थे, he was very strict disciplinarian, क्योंकि उनका जो था कि जो पढ़ाई जो है वो तो करना ही चाहिए, नहीं तो मेरा जो हाउस होल्ड है वो बहुत कंजर्वेटिव फैमिली, तो वो तो निकाल देंगे फिर, अगर पढ़ाई मेरा अच्छा नहीं हुआ, ग्रेड अच्छा नहीं हुआ, तो तबला तो बंद हो जाएगा। तो
I used to get up at 4 o'clock in the morning. Still remember that. And he was very strict. He was ruthless. मेरा जो पिताजी थे, तो 4:30 बजे से 6:30 तक वो प्रैक्टिस करते थे। और उसके बाद होमवर्क जितना था वो कंप्लीट करके, थोड़ा ब्रेकफास्ट करके, फिर स्कूल से वापस आते थे अराउंड 3:30। फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट के बाद थोड़ा हम लोगों का तो जॉइंट फैमिली था, तो सब भाई लोगों के साथ थोड़ा खेलते थे। और वो 1 घंटे के लिए फिर होमवर्क कंप्लीट करना था, वो करते थे। होमवर्क कंप्लीट करने के बाद फिर मेरा टीचर, मेरा गुरु, वो 7 बजे आ जाते थे। तो 7 से करीब 10:30 ऐसा रोज चलते थे। अनलेस शिक्षा होता था एवरी डे। अच्छा। अनलेस आई एम सिक, कभी कभी होता है ना, फ्लू हो गया कि तो आई यूज्ड टू बी सो हैप्पी दैट मेरा फ्लू हो गया, आज नहीं बजाना पड़ेगा, लेकिन मेरा घर पे तो सब लोग डॉक्टर, वो दवाई दे देते थे। मेरा पिताजी ने नहीं नहीं कुछ नहीं है, ये दवाई ले लो चलो। अरे तो ऐसा हुआ था। और 19 इयर्स वो कंटिन्यू करने का बाद फिर जब मेरा गुरुजी का फर्स्ट हार्ट अटैक हुआ था, तब उसके बाद हमको उनके घर पे जाना पड़ता था, विच इज वेरी क्लोज। ऐसा नहीं कि दूर, बहुत ही क्लोज। तो वहां जाके तालीम होता था। लेकिन मेरा गुरु का एक चीज था कि वो बहुत सॉफ्ट नेचर का आदमी था, बट एट द सेम टाइम ही वाज आल्सो वेरी सेंटिमेंटल। तो उनका बहुत दुख होते थे कि बाद में क्या होता था कि 70s में उसी टाइम में मैं इधर उधर बजा रहे थे, तो रोज तो नहीं जाना जाना मुश्किल होता था। तो उनका बहुत गुस्सा आ जाता था और हमको कहते थे तुम पंडित हो गया, बड़ा उस्ताद हो गया, हाँ अभी तुम्हारा हुआ क्या, अब तुम्हारा कुछ नहीं है, तबला पर तो जानते ही नहीं, तुम्हारा कुछ होगा ही नहीं, ऐसा ऐसा कहते थे। तो फिर मैंने थोड़ा बटरिंग करके ठीक करते थे करके। हाँ। तो लेकिन स्वपन दा एक चीज आपको मैं पूछना चाहता हूँ इसके बारे में। तो आप जो रियाज करते थे इतना दिन, सुबह सोचिए कि 2-3 घंटा आपका रियाज होता था, फिर शाम को जो शिक्षा होता था, उसमें क्या सिर्फ शिक्षा होता था कि शिक्षा में रियाज भी होता था? शिक्षा में तो रियाज तो होना ही चाहिए। पहले पहले उन्होंने क्या करते थे कि हमको लेके एटलीस्ट हाफ एन आवर वो वार्म अप प्रैक्टिस जो होता है ना, वो करते थे। वो मेरा गुरु भी बजाते थे और उनके साथ मैं भी बजाते थे, क्योंकि एकदम शुरू से ही एक कॉम्पोजिशन लेके बैठ जाओ, ऐसा कभी नहीं किया उन्होंने। यही मैं पूछना चाहता था कि ये जो रियाज आपने इतना, अभी तक आपका हाथ इतना चलता है, और ये जो आपने तो, देखिए ये तो भगवान का दान है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली कि यू मस्ट हैव डन समथिंग। नो, सम पीपल दे थिंक दैट सुबह उठ के ही बैठ गया कोई कायदा या चक्रधार या टुकड़ा लेके, whether that is right or whether you should warm up for quite a bit, and then after that you can uh, take another qaida for your mental riyaz or something like that. नहीं भाई, मेरा जो रिवाज होता तो वो अलग किस्म का था, क्योंकि वो पहले बहुत स्लो लय पे जो भी जो बानी जो है से तिरकिट, तो तिरकिट ताक ताक तिरकिट ताक ताक, लेकिन धीमे लय पे रे की ताक ताक, ये 10-15 बार करने का बाद
फिर इसको मैं डबल करते हम्म, वो स्लोली स्लोली, तब क्या होता है। और अभी भी मैं अभी भी जो रियाज करते हैं इसी हिसाब से करते हैं, क्योंकि मैंने देखा कि इट्स वेरी प्रैक्टिकल। क्योंकि if you do anything, if you are a soccer player, तो पहले तो क्या करते थे ये लोग, थोड़ा वार्म अप करते हैं ना, बॉडी को एडजस्ट करना है ना। तो पहले से ही तुम कॉम्पिटिशन शुरू कर दो तो यू विल गेट हर्ट। तो मैंने जो देखा कि बहुत सारी तबला प्लेयर, उनका हाथ का गड़बड़ हो गया, इसीलिए। तो इसीलिए स्लो लय पे कस के बजाना, और उसके बाद उसको डबल करो कि जितना तो, लेकिन स्पीड में नहीं चाहिए। यही ध्यान रखना चाहिए कि उसका जो वॉल्यूम जो होता है, उसका जो ओजन जो है, हम्म। वो ओजन कैसे बढ़ेगा। क्योंकि क्या होता मतलब है, स्पीड स्पीड इज नॉट द अल्टीमेट थिंग, दैट्स व्हाट आजकल बहुत ये होता है। तो देखो, ये ओजन मतलब हाथ का जो चाप होता है, जो आपके हाथ में हम लोगों को मिलता है। वही असली बात है। क्योंकि आज देखो, ये जो वार्म अप बारे में, एक बच्चा जब पैदा हुआ था तब तो वो माँ के गोद पे ही है। फिर स्लोली स्लोली क्या होता है, वो जो क्रॉलिंग स्टेज आ गया, है ना। तो क्रॉलिंग स्टेज के बाद वो बच्चा कोशिश करेंगे कि उठने के लिए। हम्म, तो एक दिन हुआ कि वो उठ गया, फिर गिर गया, फिर दो तीन बार ट्राई किया, फिर उसके बाद वो स्टेडी हुआ, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो वॉक करने लगा। तो हम लोगों का तबले में तो ये एक ही सिस्टम तो एक ही होना चाहिए। यू हैव टू वार्म अप फर्स्ट एंड देन यू गो। एंड वो जो स्पीड का बात जो है, वो है कि जब तुम्हारा वो हाथ में वो बैलेंस आता है ना, तो स्पीड अपना से ही होता है। अगर तुम्हारा अपने बैलेंस, आप आ जाता है। हाँ, अगर बैलेंस नहीं आया तो कैसे होगा। तो वो जो बच्चा वो उठ के फिर वॉक करने लगा, क्यों? क्योंकि उसका बैलेंस आया, इसीलिए। तो जो स्पीड, हम लोग पहले से ही स्पीड का ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन स्पीड नहीं, वो असली जो है, जो क्लैरिटी, जो हर एक बोल जो हम बजा रहे हैं उसका, वो अगर वो क्लियर है, क्लीन है, और उसका ओजन। क्योंकि ये जो ओजन जो होता है, यही रहेगा। स्पीड क्या होता है, तुम्हारा एज के, उम्र के हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा, लेकिन जो रहेगा वो हो, वो है वो जो फीलिंग्स एंड ओजन। अब देखो लड़कों कहाँ से आपको, एक उन्होंने धाक देना, तुम जहां भी रहो तुम बोला हा हा क्या बात है। तो एक ही चीज हम लोग इतना कोटि बार सुन लिया, लेकिन अभी भी वही सुनेंगे तो वही आएगा, आए आए आए। क्यों? इतनी स्पीड नहीं, वो जो फीलिंग्स और ओजन। तो तबले में ये चीज बहुत ही जरूरी है कि हम लोग उसका ध्यान नहीं देते। अब वो जो स्पीड जो है, पहले तो तुमको बैलेंस अगर आएगा तब क्या होगा, तुम्हारा दम बढ़ेगा। जब दम बढ़ता है तब स्पीड भी बढ़ता है। अगर तुम्हारा दम, अब देखो तुम एक महीना प्रैक्टिस मत करो, तब जब बजाओगे ना एक महीने के बाद, तुम्हारा स्पीड हुआ जाएगा, पहुंचेगा, लेकिन हल्का हो जाएगा। दम ओजन, भी कम हो जाएगा, दम भी ओजन कम। भी कम हो जाएगा। हाँ, तो ये सब चीज बहुत नजर देना चाहिए सब लोगों को। जो लोग तबला बजाते हैं इनको ध्यान देना चाहिए।
ये अच्छा बहुत स्वपन दा, और एक चीज अभी आपके घराने के बारे में हम लोग पूछते हैं कि लखनऊ घराने में अभी हम लोग आपको ही देखते हैं। मैं छोटी उम्र में सुना था कि आफाक हुसैन खान साहब कलकत्ते में आते थे, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं। और अभी लखनऊ घराने में आप ही जो है, जो लिगेसी आप लेके जा रहे हैं, तो इसके बारे में एक चीज पूछना है कि अ, लखनऊ में हम लोग जो बजाते हैं उसको पूरब बाज कहते हैं। तो वेदर यू आर यूजिंग only the middle portion sur and sahi gab, or you use also kinar sometimes, or it is totally banned that you, because some people have an idea that Lucknow baj mein only sur bajta hai, no kinar. So we want to hear from you what is the latest thing, and also what is the implication, or what is the importance of baya in Lucknow baj. देखो भाई, जो जो भी कहते हैं कि लखनऊ में वो सिर्फ सुर का इबाज है, हम तो ये मानेगा नहीं। क्योंकि लखनऊ में जब तबला आया था, मियाँ बख्शू खान साहब और मियाँ मौदू खान साहब, ये तो दिल्ली घराने का था। ये तो आया तो दिल्ली से, तो उनका सब कुछ तो दिल्ली। लेकिन वो जब पहुंचा लखनऊ में, तब लखनऊ में जो वातावरण जो था उसी टाइम में, वो डांस और पखावज, वीणा, पखावज, डांस। So with only kinar baj, we cannot cope up with the pakhavaj or dance. So they had to take lot of phrase from pakhavaj, from nagara, Hmm. from dance, and as all assembled together. Not only that, they had to find out about the वो जो टेक्निक, फिंगरिंग टेक्निक क्या कैसे होगा। तो ये दो भाई बहुत चिंता भावना करने का बाद ये जो स्टाइल उन्होंने बनाया, उसका रूप हुआ कि खुलाबाज। हाँ, किनार तो है ही है, तो पखावत से वो जो खुला जो जो सूर का जो काम, ये भी लिया। तो लखनऊ में किनार तो है ही है, इतना सारी कॉम्पोजिशन बेस्ड ऑन ओनली किनार, ऐसा तो बहुत है। और सुर का भी अच्छा। है। और वो जो मिडिल जो शाही का जो है, गाब का हाँ जो हाँ बोल है, ये हाँ। सब देखे ये जो एक रचना जो हुई, जो उन्होंने क्रिएट किया, कि वो खुलाबाज शुरू हुआ और वहां से वो है पूरबबाज हुआ। हाँ। तो तो पूरब बाज पूरबबाज, का स्पेशली, हाँ, स्पेशलिटी क्या है लव सपंदा? तो पूरब बाज आप क्यों कहते हैं? क्योंकि दिल्ली से पूरब है इसीलिए क्या उसका? नहीं नहीं, क्योंकि बाज तो अलग हो गया ना, अप्रोच तो अलग हो गया। क्यों अलग हो गया? कि यू आर इंक्लूडिंग अ लॉट ऑफ अदर बोल्स। पखवाज के। पखावाज का बोल घंटान धा दिन तक धड़न्ने कर दे, धुमक तक, सो गरिंदा कर दे। तो ये सब बोल बानी पखावाज से, फिर डांस से लेके लेके ता थुंगा तकिट झिकिट तक थुंगा तकिट झिकिट। अब हाउ यू विल प्ले झिकिट? तो ये सब इन लोग सोचा और उसका जोड़ी बनाया। तो ये सब नया बानी तब हुआ जब ये लखनऊ में आया। दैट्स व्हाई दे स्टार्टेड कॉलिंग इट पूरबबाज। अब पूरबबाज लखनऊ से फिर एक तो गया बनारस में और एक गया फरुखाबाद। फरुखाबाद। हाँ, तो ये जो तुमने जो बनारस में जो जो बजता है,
ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि अब देखो फरुखाबाद, फॉर एग्जाम्पल फरुखाबाद, हाँ, हम्म, अब तुम देखो कलकत्ता में एक फरुखाबाद बज रहा है, हाँ, अब तुम महाराष्ट्र में जाओ वहां भी फरुखाबाद बज रहा है, अब तुम थोड़ा सा दिल्ली में डिफरेंट है। जाओ, तो हाँ, डिफरेंट है। हाँ, तो क्यों डिफरेंट है कि ये जो एक 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 जगह का एक महत्व है, एक हाँ, एटमॉस्फेयर होता है, तो वो एटमॉस्फेयर हिसाब से ये सब चेंज हुआ, अप्रोच चेंज हो गया, लेकिन है ही तो वही। हम्म, तो जब ये बनारस में आया उसी टाइम में भी ऐसा हुआ, उसमें बानी बोल बहुत आ गए, क्योंकि बनारस एट दैट टाइम वाज एज अ मेन पॉइंट ऑफ हिंदुइज्म हम्म, religion, Hindu हाँ, religion. So all the हाँ, god and goddess, इनका जो आरती जो होता था वो हम्म, करके ये लोग बोल बानी उसमें जय दुर्गा पड़न, शीत पड़न, गणेश पड़न, ये सब पड़न वगैरह उन लोग बजाया, वो लखनऊ से ही हम्म, आया। वो ये बोल बानी वो बनारस में आया, और फिर फरुखाबाद में भी यही अप्रोच अलग हो गया। तो लखनऊ में जो सिर्फ सूर ही है ऐसा नहीं, हम्म, लखनऊ में तीन है, सूर तो है ही है, किनार भी है, और शाही हम्म, का बहुत सारी चीज है। अब पढ़न बजाओगे तो शाही तो है ही, अब पढ़न तुम बजाओगे बिना शाही से मिडल ऑफ द तबला, तो होना ही चाहिए, धागे ते धागे हम्म, ते धागे ते तुम कैसे बजाओगे? वो हम्म। तो अगर तुम नीचे करके बजाओगे तो वो उसका वो मजा नहीं आएगा, पढ़न का जब होना चाहिए। तो अच्छा स्वपन दा, और एक चीज आप इसके बारे में आप जब बोल रहे थे, तो if somebody has learned from this pura baj or khulla baj, will he get some advantage to play with dance or to play with sarod or maihar baj sitar? Because I have seen you playing with almost everybody, but we all know that you have been playing with Khan Sahab, Ali Akbar Khan Sahab, uh, for God knows how many days. I have seen from my childhood that you are only playing. So, I mean, and also I have seen you and some of the good recordings of Pandit Nikhil Banerjee is with you, and we are very good friends. So, do you get any advantage, special advantage of being from Lucknow Gharana to play with Sarod Bolbani or fit it with that, like that, dire 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 da da da, something like that? there is some advantage there because in Sarod, particularly in the Mahar Gharana, I don't think Hmm, it's only Mahar Gharana. It's every single Gharana. hmm, They use a lot of bowl, and those bowls actually belongs to Pakhawaj. So they use those bowls, and so if you have some idea about Pakhawaj bowl and playing on tabla, there is one advantage, no doubt. But it does not mean that if you are not from Lucknow, you cannot play. No, there no, are a that lot. is of course, yeah, that is There are, always there. yeah, I mean, the thing is that you have to adopt it. You have to adopt it. Delhi Gharana, when it was established at that time, what it was only they were playing in the court, Hmm, emperor's court, right? So they were either playing with mostly solo or not with dance at that time. But later on, when it came open to everywhere, so if you are a musician, you have to adopt
Yes. तो Yes. ये लोग एडप्ट कर लिया, वो सब बोल बानी सब सुन के कॉम्पोजिशन बन गया इसी हिसाब से। तो लेकिन हाँ, इसमें जो फरुखाबाद की बनारस और लखनऊ has some advantage because of the bowls and Mm. Okay. Swapanda, before I go to the next question, I just want to ask you because our university is teaching tabla, vocal, and bansuri right now. So, as a tabla student, how important it is uh, for a tabla student to know the other genres of music, like a little bit of sitar, or not to play, but to know the technique, or uh, especially vocal music, because vocal is the main thing of our Indian classical music. So, how important do you think that vocal music is important for a tabla player to know, or the raga system? I think it is 100%. I think every single tabla player should learn vocal music, and I think vocal music should be compulsory for any musician, whether you are a tabla player or pakawaj player or dancer or instrumentalist. Vocal music should everybody should learn. See, the thing is that if you learn the vocal music, what happened? First of all, when you are accompanying with the vocalist, you get the feeling. The vocal music will teach you the feeling. Hmm. ये जो हम लोग को म्यूजिक में जो फीलिंग्स ना, ये बहुत बहुत बड़ी बात होता है कि एक सुर तुमने लगाया, ऐसा लगाया कि सब लोग हाय हाय हाय, क्योंकि वो एकदम अंदर गया। तो ये जो हिसाब, वेदर कि तुम तबला बजाओ कि सितार बजाओ कि बांसुरी बजाओ, ये सबको वो अंदाज होना चाहिए। ये अंदाज Hmm. बहुत जरूरी है, एक नंबर। नंबर टू, अगर तुम तबला प्लेयर है तो तुमको तबला तो ट्यून करना पड़ेगा भाई। तो वो सुर का कान कान में जो सुर होता है, जो वो तो होना चाहिए। अगर वो ठीक नहीं है तो तुम तबला ट्यून करोगे कैसे? अंदाज तो नहीं होगा। तो वो बहुत Important. इम्पोर्टेंट है। नंबर थ्री, आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव टू, तुमको जितना इतना सारी राग है सब कुछ जानना, तुमको सीखना है, ये संभव नहीं है। लेकिन जो कॉमन राग्स जो है वो सीखना चाहिए। क्योंकि देखो, एक एक राग का एक एक रूप होता है। अगर तुम श्री, किसी ने श्री गा रहे हैं या तुम साथ में बजा रहे हैं, अब तुम शुरू से ये करोगे तो श्री तो कुश्री हो जाएगा, है ना? रस हो जाएगा। हाँ, हाँ। तो ये जो राग, ये राग का हिसाब से चलो, क्योंकि एक एक राग का एक एक जैसे एक ह्यूमन, अब इतना सारी नाजुक राग है, जैसे दरबारी का नाड़ा। तो ये जब धैवत में वो जो आंदोलन जो हो रहे थे, अगर उसको तुम समझ में नहीं आएगा तुम्हारा, तो बजाना मुश्किल हो जाएगा, है ना? तो वो जो सेंटिमेंट, वो बहुत जरूरी है, और इसीलिए वोकल म्यूजिक जरूरी है। हम तो सीखा भाई, हम 16 बरस तक सीखा, गाते थे अच्छा, ये मालूम मालूम नहीं था। अच्छा। माँ से, माँ के पास। क्योंकि मेरा गुरुजी ने कहा कि तुमको वोकल सीखना ही पड़ेगा। हम्म। तो माँ के पास सीखते, बहुत गाते थे, लेकिन मेरा वो इन्फेक्टिव टॉन्सिल, तो इसीलिए बंद हुआ। लेकिन अभी भी मैं गाते हैं, मेरा अच्छा लगता हाँ, है। हाँ। और तो जब तुम सफलता, अच्छा।
अच्छा बोलिए, हाँ प्लीज करिए। बोलो, अच्छा, बोलो। आपको मैं ये जो वोकल म्यूजिक सुनेंगे, आप जब किसी के साथ बजाते हैं तो आजकल दो चीज हम लोग देखते हैं जो आपके अंदर उतना हम लोग कभी नहीं देखा। वन इज, यू नो, कि बहुत इत्मीनान से ठेका आप देते हैं, बहुत स्मूथ ठेका देते हैं। एंड लुकिंग एट योर फेस, हम लोगों को मालूम पड़ता है कि यू आर जस्ट लिसनिंग टू द म्यूजिक एंड एंजॉयिंग द म्यूजिक। आई हैव हर्ड यू विद सुनंदा पटनायक जी, आई हैव हर्ड यू विद सराफत हुसैन खान साहब, vocalists, and then of course with Nikhil Banerjee and Ustad Ali Akbar Khan Saab, or even Amjad Ali Khan Saab. So and many others. I cannot tell all the names, but whenever you are playing with the vocalist, I have seen that you are just enjoying playing the theka. So how important is giving a full take because nowadays people just wait whenever you get chance, आप धीरे 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 कब दिखाएंगे, उसी के लिए वो लोग मरते हैं। सो बट आई हैव नेवर सीन इन यू, और जो पुराने जमाने में जिन लोगों को हम लोगों ने देखा, करवत खान साहब को भी देखा, कभी ऐसा नहीं देखा कि वो तड़पते हुए कि कब बजाएंगे, ऐसा नहीं था। तो इसके बारे में आपका कुछ अगर इफ यू गिव सम यू नो thoughts so that our students get some impetus. You see, the thing is that no matter what, कि तुम अगर तबला बजाओ, कि तुम बांसुरी बजाओ, कि सितार बजाओ, सर तुम तो है तो म्यूजिशियन। तो म्यूजिशियंस का पहला जो है, पहला थिंग इज कि तुमको एंजॉय करना पड़ेगा, म्यूजिक सुनना पड़ेगा। अब जब तुम किसी के साथ बजा रहे हो, अगर तुम उसको ध्यान रख के सुनोगे तो वही तुमको कहेगा कि क्या बजाना चाहिए, और उसी हिसाब से तुम जाओ तो एवरीथिंग विल बी ब्यूटीफुल। अब उसी हिसाब से तुम ना जाओ तब गड़बड़ होगा। तो आई वॉज फॉर्चुनेट कि मेरा जो जन्म जो हुआ था ना, एक वो टाइम तो मैंने देखा ये सब पुराना, ये लोग कैसे गाना बजाना करते थे, ये मैंने देखा। और इन लोगों का मैंने जो देखा कि ऐसा कभी मैंने देखा कि आज मैं देख लेंगे, ये भाव नहीं था। वो तो सिर्फ सेल्फ एंजॉयमेंट। तो स्टेज पे ही मैंने देखा कंठे महाराज जी बजा रहे थे इनके साथ, निखिल बैनर्जी के साथ, और वो एकदम बच्चा जैसे होता है ना, ऐसा करते थे। आय हाय आय हाय, हाँ बात, हाँ बेटा थोड़ा धमाल बजाओ, हाँ थोड़ा धमाल। लेकिन इट्स लाइक दैट ही वाज एंजॉयिंग इट। तो लेकिन अब जो मैं देख रहा हूं, जो युग जो चेंज हो रहा है, अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब लोग किसी को साथ मैं बजा रहे हैं श्री आलाप, वो हम आलाप नहीं सुनते हैं। उसी टाइम में हम क्या करते हैं, हम गिनती करके इतना तिहाई का हिसाब वो पता कर रहे हैं कि वो एक एक के बाद बजाएंगे। अगर इधर उधर हो गया तो गया, वो हिसाब चल रहे हैं। लेकिन अगर तुम आलाप नहीं सुनोगे तो तुम्हारा हिसाब होगा नहीं। Music will suffer because if you are not listening to the alap, you are not going into the music. I think so. So when you are playing with him, actually you are not into that atmosphere. You are just only showing your tihais and all this kind of thing. अच्छा स्वपन दा, अंत में I just want to ask you one question because you are generally those who teach in the university does not perform outside, and those who are performing outside generally don't teach that much in the university. Now our university, we are trying to make it a gurukul, as you know that, as you said that every day 4 hours. So
our routine is that the students get up at 6:30, and 6:30 से 8:30 they make play रियाज, और वो थोड़ा थोड़ा वो जैसे आप बोल रहे हैं कि हाथ बैठना, और देन आफ्टर दैट 9:30 to 11:30 दे प्रैक्टिस कायदा व्हाट एवर इट इज। तो हर रोज हम लोग ये करते हैं, और गुरु वहां पे रहते हैं, कभी कभी दूसरे आर्टिस्ट भी रहते हैं। सो आई मीन, एंड यू have worked in Rabindra Bharati University for a long time. After that, you have came here and worked for Ali Akbar College of Music, and then you are now one of the, I think you the director of CalArts, one of the main uh, uh, institute of which is propagating Indian classical music in USA, and very prestigious organization CalArts. So you are one of the in the board of directors. So what do you think that a university degree is important for a performer, and how can we keep kind of a balance between both? Well, first of all, I will congratulate you that that you are doing the right thing, so that Thank the you. future generation will be benefited, because through college, school, you get go and get a degree. जैसे हम लोगों का जो CalArts जो है, CalArts is also a performing institute. And by the by, I'm not a director. I'm just a faculty member. I used to be the head of the world music program, but now I just I couldn't take it anymore. It was too much work for me. So I'm just a faculty now and the head of the tabla department. Um, but CalArts, it's a performing arts center, and their goal is to create that. If you are in the music school, to create to be a good musician, to make you a good musician. And it's a huge institute. You have known that it has so many departments, not only music, but dance is there. There is graphic art, animation, because it is ये तो डिज्नी वॉल्टर डिज्नी का स्कूल है, तो वहाँ तो थिएटर, एक्टिंग, वो एनिमेशन, म्यूजिक, ड्रामा, डांस, वो बहुत बड़ा स्कूल है। एनीवे तो इन लोगों का जो मोटो है कि यहाँ से लोग जब बाहर जाएंगे, they will be successful. In fact, most of the people who are graduating from CalArts, they are already well established in their field. And so when I joined in CalArts about it is now over 25 years. My God, so long association. Yeah. I joined in 1991, and then there was a tabla department at that time, but there was no major. We never used to get major student, getting their bachelor's degree or master's degree in tabla. But then I kind of pushed it, and then finally people are coming to study tabla as their major. Like हम लोग इंडिया में कहते हैं ना कि ऑनर्स, तो हाँ, ये हुआ। तो अभी मैंने जो देख रहा है कि ये जो तुम लोग जो कर रहे हो, ये इसका भविष्य बहुत अच्छा है। थैंक यू। और मेरा ख्याल में यूनिवर्सिटी, अगर वो यूनिवर्सिटी ओनली द म्यूजिक डिपार्टमेंट, दे शुड थिंक दैट वे, कि जो लोग यूनिवर्सिटी में आए, अगर वो उसका
एक स्टूडेंट का मतलब टैलेंट है म्यूजिक में, तो उसको आगे बढ़ना चाहिए, उसको आगे बढ़ाओ। तो ये जो तुम लोग कर रहे हो, आई एम वेरी हैप्पी एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट यू बिकॉज इट विल Thank बी you. excellent for the next generation. Thank you. We have been trying, Sapanda, that we want to make it more on the performance basis rather than just university जो जैसे सब जगह होता है. It's not that. So that people they really practice, they rehearse, and it's a beautiful ambience there. चारों तरफ पहाड़ है, बहुत अच्छा है जगह, and people really enjoy that. So Very Swapanda, many thanks. आपका आशीर्वाद से हम लोग इसको आगे बढ़ाए. हाँ, एक So बात हमको हम बोलना चाहिए, हाँ हमको बोलिए. वो है, देखो भाई, हम तो लखनऊ घराना का स्टूडेंट है। हम्म, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरा खलीफा अभी भी है, इल्मास हुसैन खान साहब। हाँ, वो हाँ के हाँ. मुझसे बहुत छोटा है मुझसे, बट स्टिल वो मेरा खलीफा है और बहुत ही अच्छा आदमी है और हम्म, बहुत ही जानकारी है उनके पास। हम्म, हम्म, अम, लेकिन अभी जो गाना बजाना में इतना गणतंत्र आ गया ना, पॉलिटिक्स इतना आ गया, इतना बड़े बड़े कलाकार है, इतना गुनी गुनी आदमी है अभी भी, लेकिन वो बेचारा लोग नहीं आ पाए। तो और इल्मास खान साहब भी ऐसा ही एक आदमी है, वो जैसे आफाक हुसैन खान साहब ऐसा ही था। हाँ. तो हम तो सिर्फ ये घराना का मैं बहुत मानते हैं, हम तो सभी घराना के मानते हैं, लेकिन ये घराना, क्योंकि मैं इसी घराना से मेरा जन्म हुआ, हम्म. तो और जो उसको ही आपने फॉलो किया पूरा जिंदगी. यू हैव नेवर चेंज्ड योर लीगेसी. and I never even thought that I will imitate somebody. ये मेरा दिमाग में नहीं था, क्योंकि इसीलिए मेरा गुरु ने कहा, अगर तुम बजाओगे तो तुम हमको मत कॉपी करो, तुम सब्जेक्ट मैटर लो और अपना हिसाब से उसको दिखाओ, तुम्हारा जो क्रिएशन वो दिखाओ। तो मैं आज तक तो कभी किसी को मैंने इमिटेट नहीं किया, मैं जो किया, जो मैंने सीखा उसी हिसाब से, और मेरा जो मैं डिफरेंट रूप दिया उसको। So you are talking about that originality of thoughts should be reflected through your playing or anybody's playing, whichever gharana he or she belongs to, but it should be originality of his own thoughts, and Yeah, that will make him a big artist or somebody. somebody, so that if you hear somebody playing, you can you can say, अच्छा, Recognize. ये तो ये बजा रहा है, ये बजा रहा है, ये वो बजा रहा है। तो अलग हिसाब होना चाहिए, हाथ का बोल का अंदाज की, तो वो एक बार सुनने से ही पता चल जाता है कि कौन बजा रहा है। लेकिन अगर मैं किसी को कॉपी करके बजाएंगे तो क्या होता है, जिसको मैं कॉपी कर रहा हूँ हाँ. उसका जो हिसाब था वो तो मेरा तो याद, मैं तो आई कैनॉट हाउ डू आई नो कि इनका हिसाब क्या है, कैसे हिसाब से ये चल रहा है। तो उसी वक्त मैं क्या होगा, फुल स्टॉप हो जाएगा सब कुछ। तो हर एक प्रोग्राम में बजाओगे तो वही होगा, हर एक प्रोग्राम में हर एक चीज बजाओगे, अलग अलग रूप से बजाना चाहिए। Each program should be different from each from another. Yes. Same composition should be played differently, not changing anything, not changing the ball. उसका रूप कैसे लगाना चाहिए, आज तुम्हारा मूड जो है उसी हिसाब से जाओ। उसी हिसाब से. So that means
that means it comes to me as a tabla player. That means that you have to have padant, very important. जो बोल आपको मिलता है, so sorry, just hold on a second. Uh, um, Sorry. Padant is very, very important, that whenever you get a ball, then you just read it out many times so that you get into the ball itself, so that whenever you are playing in a solo or anywhere, different times according to your mood you can change your balls and with the True. original thought. Right. Because nowadays क्या होता है, सब लोग बजाना चाहते हैं। हाँ, ये पंत जो इतना इम्पोर्टेंट है, जब हम लोग मैं जब सीखते थे उसी टाइम पे, फर्स्ट थिंग इज पंत, और वो हाथे ताली दे के, हाँ, और जो भी ताल चल रहा है उसी ताल का हिसाब से हाथे ताली खाली दे के, वो बोल सिर्फ पंत सिर्फ चल रहा है चल रहा है चल रहा है। देन जब अल्टीमेटली जब तुम बजाओगे इजी होता है, क्यों? हाँ, तब वो अंदर में बैठ गए वो, और उसका जो अलग डिफरेंट रूप होता है वो पता चल जाता है। तो इसीलिए जब अगर वो बैठ गए इनसाइड में, तो जब भी तुम बजाओगे तो अलग अलग रूप होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा सपंदा, many thanks for your time Thank, and give us your thank you. valuable time. I'm very और happy that Chinmay Vidyapit is doing such a wonderful job, and Abhijit Banerjee, you are. I am so happy for you. God bless you, and also Swapnanil Chapekar and Atul Kable, both of you. Mera namaskar, and God bless you. Don't stop. That's whatever you are doing, just go forward. आपके आशीर्वाद से ऐसा ही होगा। आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा so that we can continue. Yes, my blessing will be always there, and I will support you guys. Thank you, Sapanda. Pranam. Thank you. Namaskar.